Good afternoon, everyone. I, Anupama, welcome you all at the Saval classes. I hope you all are doing fine. So, today we are going to start our lecture number 20 for the preparation of English MCQs, with the help of which we are preparing for the Master Cadre 2021. So, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए प्लीज। एंड आपको रोज ये कहा जाता है बट स्टिल लाइक्स फिर भी बहुत कम आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं करा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड। आप लोग कह रहे थे 4 राइटर्स हो गए मैम, 4 राइटर्स, आप लोगों को 2 दिन भी मिले हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आई होप यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। So let's start with the question series for today. And the question number 1 is, Matthew Arnold started his career as inspector of school, a teacher at Rugby School, an editor of the critical journal, and assistant to a publisher. हाँ जी, मैथ्यू आर्नल्ड ने अपना करियर कैसे स्टार्ट करा था? What he used to do earlier in his career? Very good. He was inspector of a school. Very right. Question number 2. How many volumes are there of John Ruskin's Modern Painters? John Ruskin के Modern Painters की total कितनी volumes हैं? 3, 4, 5 और 6. How many volumes are there of the Modern Painters? How many volumes are there? There are 5. Very right. There are 5 volumes. All right. Question number 3. Essays by Walter Pater is called. वॉल्टर पेटर के इनमें से कौन से एसेज हैं? क्रिटिकल एसेज, एसेज इन क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल स्पेकुलेशन या अप्रिसिएशन? इनमें से कौन सी कलेक्शन है वॉल्टर पेटर के एसेज की? विच इज द कलेक्शन? यस, इट इज अप्रिसिएशन. इट इज अप्रिसिएशन. क्वेश्चन number 4. Hearing of the death of Arnold in an accident, a certain critic remarked, "There goes our last Greek. There goes the greatest poet of our generation. There goes our scholar-gypsy, or there goes our greatest scholar." किसने आर्नल्ड की डेथ सुनने के बाद बोला? क्या बोला? आर्नल्ड की डेथ के बारे में सुनने के बाद क्या बोला? There goes our last Greek. The critic said, "There goes our last Greek." ग्रीक राइटर्स के साथ कंपेयर करा मैथ्यू आर्नल्ड को कि ही वाज लाइक अ ग्रीक राइटर। क्वेश्चन नंबर 5. हु इज द राइटर ऑफ 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर? 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर के राइटर कौन है? मैथ्यू आर्नल्ड, वॉल्टर पेटर, थॉमस कार्लाइल या जॉन रस्किन? हाँ जी, तो आप ये बता दीजिए निशा, हु सेड दिस? नैन्सी, आप ये बता दीजिए हु सेड दिस? यस, इट इज जॉन रस्किन. 7 Lamps of Architecture is written by John Ruskin. Question number 6. In which year the decline of Venice started according to Ruskin's Stone of Venice? रस्किन के स्टोन्स ऑफ वेनिस के अकॉर्डिंग वेनिस का डिक्लाइन कब स्टार्ट हो गया था? 1310, 1320, 1315 या 1305? In which year the decline of Venice started according to Ruskin's Stones of Venice? It was 1310. 1310, yes. Those who are answering 1310, that is absolutely right. It was 1310. Question number 7. Who gave the concept of art for life's sake? It's art for life's sake. Art for life's sake का concept किसने दिया था? टेनिसन ने, T.S. Eliot ने, वॉल्टर पेटर या मैथ्यू आर्नल्ड? Who gave the concept of art for life's sake? It was Matthew Arnold. Absolutely right. Matthew Arnold gave the concept of art for life's sake. Question number 8. What type of writing did Walter Pater define as the special and opportune art of the modern world? Special और opportune मतलब दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने वाली आर्ट मॉडर्न वर्ल्ड की कौन से जो यानर को बोला? नॉवेल को, नॉन फिक्शन प्रोज को, द लिरिक को या कॉमिक प्रोज को? हाँ जी, it is the novel. It is the novel. He considered novel as the special and opportune art. All right. Question number 9. According to Arnold, who is next to Shakespeare and Milton?
आर्नल्ड के मुताबिक शेक्सपियर और मिल्टन के नेक्स्ट कौन आता है कैटेगरी में? कोलरिज, पोप, वर्ड्सवर्थ और ड्राइडन? Yes. Who comes next to Shakespeare and Milton? It is Wordsworth. Absolutely right. Question number 10. How many essays make a part of Ruskin's Unto This Last? Unto This Last में total कितने essays हैं आपको बताना है? 2, 4, 6 और 7. How many essays make a part of Ruskin's Unto This Last? So yes, there are total 4 essays. Very, very good. Question number 11. To which journal did Carlyle contribute? Carlyle कौन सी जर्नल को contribute करते थे? Blackwood magazine, Edinburgh Review, The Guardian और The Tatler? किस मैगजीन को contribute करते थे essays Thomas Carlyle? Absolutely right. Very good. It is the Edinburgh Review. Those who are answering B, they are absolutely right. It's the Edinburgh Review. Question number 12. Arnold defines poetry thus. Poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. किस वर्क में आर्नल्ड ने पोइट्री को ऐसे डिफाइन करा? Essay on the function of criticism, essay on Wordsworth, essay on the study of poetry और essay on Shelley? किस वर्क में ये डेफिनेशन दी थी पोइट्री की? It is very right. Essay on the study of poetry. Very good. It's essay on the study of poetry. Question number 13. From where did Arnold borrow the story of Sohrab and Rustum? Arnold ने Sohrab and Rustum की स्टोरी कहाँ से borrow की थी? The Arabian Nights, Omar Khayyam, folk literature या फिरदौसी? अरे वाह! Again, it was a very easy question. Absolutely right, all of you. फिरदौसी. फिरदौसी के वर्क से सोहराब एंड रुस्तम को कॉपी किया था, बोरो किया था. शाहनामा, फिरदौसी के वर्क का नाम क्या था? शाहनामा. ठीक है, फिरदौसी के शाहनामा में से. क्वेश्चन नंबर 14. द टाइम एंड टाइड बाय रस्किन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन टोटल? टाइम एंड टाइड में टोटल कितने लेटर्स हैं? 20, 25, 22 या 30? How many letters are there in Time and Tide? Yes, there are total. Very good. Some students are answering right. There are total 25 essays. 25 letters, sorry. 25. Question number 15. What is the title of John Ruskin's autobiography? John Ruskin की autobiography का नाम क्या है? Praeterita, Praekita, John Ruskin या none of these? What is the name of John Ruskin's autobiography? Is it Praeterita? Is it Praekita? Is it John Ruskin? It is so it is प्रेटरीटा. ठीक है, एक्चुअल में ये वाला वाउल जो उन्होंने किस तरीके से डाला हुआ है, इस तरीके से जो हम पढ़ चुके, हमारा फोर्थ वाउल जो होता है, ठीक है, उस फॉर्म में उन्होंने बीच में प्रे को उस फॉर्म में उन्होंने बीच में लिखा हुआ है अपने जो है ऑटोबायोग्राफी के टाइटल में. राइट, इट्स द टाइटल ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, प्रेटरीटा. एंड प्रेटरीटा मीन्स फर्स्ट थिंग. Praeterita means first thing, right? या past things. Praeterita might means first things or past things. All right. Question number 17. In which book Carlyle reveals his bodily and spiritual torments tailored? Sartor Resartus से. Okay. Question number 17. Who is also referred to as the censor of the Victorian Age? Censor of the Victorian Age किसको बोला जाता है? Is it John Ruskin, Matthew Arnold, Walter Pater या Thomas Carlyle? Who is referred to as the censor of the Victorian Age?
It is Carlyle. Carlyle is referred to as the censor of the Victorian age. Carlyle. It's Thomas Carlyle, बच्चे. Question number 18. What is the genre of Empedocles on Etna written by Matthew Arnold? Empedocles on Etna का क्या genre है? Is it a dramatic poem, a narrative poem, a verse tale, or a satiric poem? What is the genre of Empedocles on Etna? It is a dramatic poem. Absolutely right. It's a dramatic poem. Question number 19. Who felt that the Renaissance was the most interesting period in the history of the mind? किसको लगता था कि history of the mind में Renaissance जो है it's the most interesting period? John Ruskin, Matthew Arnold, Walter Pater या Thomas Carlyle? Who believed that Renaissance was the most interesting period? John Ruskin, Matthew Arnold, Walter Pater या Thomas Carlyle? So yes, the right answer is Walter Pater. Absolutely right answer. It's Walter Pater. Question number 20. Who calls Arnold a propagandist of literature and overworked school inspector? Arnold को propagandist of literature कौन बोलता है और साथ ही कहता है overworked school inspector? Oscar Wilde, T.S. Eliot, W.H. Auden या F.R. Lewis? कि ये ज्यादा दिखावा करता है अपने लिटरेचर में. प्रोपेगेंडिस्ट. इट इज टी.एस. इलियट. राइट. जिन्होंने टी.एस. इलियट आंसर दिया है, वेरी वेल डन. इट्स टी.एस. इलियट. इट्स टी.एस. इलियट. क्वेश्चन नंबर 21 से पहले बच्चे हमारे सब्जेक्ट्स के मास्टर केडर के प्रेड ग्रुप्स चल रहे हैं. इंग्लिश के हमारे 2 ग्रुप्स चल रहे हैं. जो रीसेंट बैच हमने स्टार्ट करा है वो स्टार्ट करा है 6 मई को. और अगर इसके रिगार्डिंग आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं दीपक सर को इस नंबर पे. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 21. हु एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ आर्ट फॉर आर्ट्स सेक व्हिच बिकेम अ कार्डिनल डॉक्ट्रिन ऑफ द मूवमेंट नोन एज एस्थेटिसिज्म? आर्ट फॉर आर्ट सेक का जो आइडिया था उसको किसने फेवर किया था? वॉल्टर पेटर, जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड या चार्ल्स लैम्ब? इसका जवाब तो ऐसे ही मिलना चाहिए मुझे, है ना. वॉल्टर पेटर ने एडवोकेट किया था. वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर 22. इन विच ईयर पेटर्स मैरियस द एपिक्यूरियन गॉट पब्लिश्ड? मारियस द एपिक्यूरियन किस ईयर में पब्लिश हुआ था वॉल्टर पेटर का? 1880, 1881, 1884 या 1885? In which year Walter Pater's Marius the Epicurean got published? So yes, it got published in 1885. Very right. 1885 में publish हुआ था. Question number 23. From which famous poem the following line is taken? And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight. कौन सी famous poem में से ये lines ली गई हैं? Thyrsis, Dover Beach, The New Sirens or Sohrab and Rustum? So yes, this famous line that we are on a darkling plain जहां पे कुछ पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है, तो it is Dover Beach. It is Dover Beach. Question number 24. In which of his works Pater gives an extremely literary review of Plato and neglecting the logical and dialectical side of his philosophy? कौन से वर्क में पीटर ने प्लेटो और उसकी फिलॉसफी के बारे में बात करी है? प्लेटो एंड फिलॉसफी, प्लेटो एंड साइकोलॉजी, प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म या नन ऑफ दीज? सो यस, द एब्सोल्युटली राइट आंसर इज प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म. क्वेश्चन नंबर 25. Which of these methods Arnold pleads for in his The Study of Poetry? इनमें से कौन से मेथड को आर्नल्ड जो है अगेन प्लीड करते हैं, फेवर करते हैं स्टडी ऑफ पोइट्री में? Is it Blackstone? Is it Yellowstone method? Is it Touchstone method or Catalyst? Again, the answer is absolutely correct. It is the Touchstone method, जिसमें वो कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, जिसमें वो कंपैरिजन करते हैं क्लासिक पोएट्स का साथ में न्यू पोएट्स के. क्वेश्चन नंबर 26. ड्यूरिंग विच ईयर्स रस्किन राइट हिज ऑटोबायोग्राफी? रस्किन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम हमने अभी पढ़ा प्रेटरीटा, वो कब लिखी थी? 1884 से 89 तक,
1882 से 89 तक, 1885 से 89 तक, या 1880 से 1890 तक? From which year to which year Ruskin wrote his autobiography? Yes, it is 1885 to 1889. That is the correct answer. 1885 to 1889. Question number 27. Who was the ideal of John Ruskin? John Ruskin के ideal कौन थे? Matthew Arnold, Ben Jonson, John Dryden या Thomas Carlyle? Who was the ideal of John Ruskin? Yes, it was Thomas Carlyle, without any doubt. Thomas Carlyle was the ideal of John Ruskin. Question number 28. How old was Carlyle when he died? Carlyle कितने सालों के थे जब उनकी डेथ हुई? 90, 80, 85 या 84? How old was Carlyle when he died? He was 85 years old. He was 85 years old, बच्चे. 85 years के थे Carlyle, right? He was 85 years old. क्या बर्थ डेट है उनकी? 1795 से 1881, राइट? उन्होंने अभी कंप्लीट ही किए थे 85 इयर्स, तो 85 ही माने जाते हैं. बच्चों को, छोटे बच्चों को राउंड ऑफ करवाते हैं ना, मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा. राउंड ऑफ करवाते हैं, जैसे उनको 23 को राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाता है, तो इट विल बी 20. अगर 85 से अबव होता है, मतलब मान लो अगर यहाँ पे 28 है, तो इट विल बी 30. तो क्योंकि उन्होंने, ये बर्थ उनका है दिसंबर में, डेथ उनकी होती है फरवरी में, ठीक है? तो 1-1.5 महीना ही हुआ था उनके बर्थ को, सॉरी, उनकी जो है बर्थडे को, तो इसलिए इट इज 85, राइट? क्वेश्चन नंबर 29. With which group was Thomas Carlyle closely associated? इनमें से कौन से ग्रुप के साथ थॉमस कार्लाइल क्लोजली एसोसिएटेड थे? मेटाफिजिकल पोएट्स, प्री रेफेलाइट्स, फायरसाइड पोएट्स या लेक पोएट्स? किन पोएट्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड थे? अरे वाह, मुझे बहुत सारे सही जवाब मिल रहे हैं. प्री रेफेलाइट्स के साथ. वेरी गुड, प्री रेफेलाइट्स. क्वेश्चन नंबर 30. Arnold regards Dryden and Pope as the classical of English what? किस यानर के क्लासिकल्स माने जाते हैं ड्राइडन और पोप? प्रोज, पोइट्री, ड्रामा और सटायर? So Arnold regards Dryden and Pope as the classics of prose, poetry, drama या satire? It is prose. Dryden and Pope are considered to be the classics of prose. Prose. Question number 31. Rugby Chapel is a poem by Matthew Arnold in the memory of. किसकी मेमोरी में लिखी थी रग्बी चैपल? अब मुझे फिर पता है, फटाफट भागते भागते जवाब आएंगे मेरे पास. मदर, बॉय, फादर या ब्रदर? किसके लिए लिखी थी? फादर के लिए. वेरी राइट, अपने फादर के लिए लिखी थी आर्नल्ड ने. क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following works is not written by Matthew Arnold? इसमें से कौन सा वर्क मैथ्यू आर्नल्ड का लिखा हुआ नहीं है? जॉन कीट्स, द स्टडी ऑफ पोइट्री, कल्चर एंड एनार्की या पी.बी. शेले? Which of the following works is not written by Matthew Arnold? It is पी.बी. शेले. ठीक है जी, क्योंकि जॉन कीट्स भी उन्होंने लिखा है. जॉन कीट्स भी उन्होंने लिखा है, ठीक है? उन्होंने नहीं लिखा पी.बी. शेले, राइट. क्वेश्चन नंबर 33. Who is the writer of the Ethics of Dust? Ethics of Dust के राइटर कौन हैं? जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड, कार्लाइल या वॉल्टर पेटर? Who is the writer of the Ethics of Dust? So the Ethics of Dust is written by, it is John Ruskin. It is John Ruskin. Question number 34.
इन हाउ मेनी चैप्टर्स रस्किन्स मुनर्वा पल्वरिस इज डिवाइडेड? रस्किन के मुनर्वा पल्वरिस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4, 6, 8 और 10? In how many parts Ruskin's Minerva Pulveris is divided? So it is divided into 4 chapters. 4 chapters. Yes. 4 chapters are there in Minerva Pulveris. कईयों के आ रहे हैं सही जवाब मेरे पास. गुड गुड. 6 है. Is it confirmed 6 है? 6 पक्का श्योर है? आई एम इन अ डाउट. 6 आएगा. ठीक है जी, 6 आएगा. बच्चे बड़े श्योरिटी के साथ कह रहे हैं. शायद वो पहले भी वो चैप्टर्स वाले आए थे ना, तो मैं उनमें कंफ्यूज हो गई. ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मैं पहले वाले भी वो कुछ आंसर्स आए थे ना, किसकी कितनी वॉल्यूम्स हैं, किसके कितने, तो मैं शायद उनके साथ कंफ्यूज हो गई. क्वेश्चन नंबर 35. इन मैथ्यू आर्नल्ड्स पोएम डवर बीच the speakers refer to the melancholy long withdrawing roar of the sea of faith. This reference alludes to which of the following? हाँ जी, क्या रेफरेंस, किस चीज को allusion दिया है जब वो sea of faith के ड्रॉ होने की बात करते हैं? The Protestant Reformation, religious interpretations of changes to the oceans, the decline of religion's importance in the modern West, या his lover's betrayal. किस चीज की बात करी है डवर बीच में? सी ऑफ फेथ के पीछे जाने की, विथड्रॉ होने की. एब्सोल्युटली राइट. टॉक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ रिलीजन. ठीक है, जैसे कि सेकंड कमिंग में W.B. येट्स ने बात करी है कि जो फैल्कन है वो फैल्कनर से दूर दूर जाता है, उसी तरीके से मॉडर्न एज में कैसे लोग रिलीजन से दूर होते जा रहे हैं. तो सी ऑफ फेथ जो है वो विड्रॉ, सी ऑफ फेथ जो है वो पीछे पीछे जाती जा रही है, उसकी बात करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड. क्वेश्चन नंबर 36. इन अनटू दिस लास्ट रस्किन फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ. किस प्रॉब्लम पे फोकस किया है अनटू दिस लास्ट में जॉन रस्किन ने? रिलीजन, चर्च, वेजेस या रिनेसेंस? अनटू दिस लास्ट में किस प्रॉब्लम पे फोकस किया है? यस, इट इज वेजेस. वेरी वेरी राइट. वेजेस के इशू पे, लेबरर्स के, है ना. अगर आपको यहाँ पे आ जाए तो लेबरर्स भी आ सकता है, लेबरर्स की वेजेस पे. क्वेश्चन नंबर 37. विच बुक ऑफ जॉन रस्किन इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी? जॉन रस्किन की किस बुक से महात्मा गांधी बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे? सेसमे एंड लिलीज, द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, अनटू दिस लास्ट और फॉर्स क्लेविग्रा? किस बुक से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे? बड़ी जल्दी से आंसर आने वाले हैं इसके भी. यस, इट्स अनटू दिस लास्ट. एब्सोल्युटली राइट. क्वेश्चन नंबर 38. हु हैज रिटन द प्रीफेस ऑफ सार्टर रिसार्टस? सार्टर रिसार्टस का प्रीफेस किसने लिखा है? थॉमस कार्लाइल, राल्फ वॉल्डो इमर्सन, जॉन रस्किन और मैथ्यू आर्नल्ड? हु हैज रिटन द प्रीफेस ऑफ सार्टर रिसार्टस? It is, yes, absolutely right, Ralph Waldo Emerson. Very right. Ralph Waldo Emerson has written the preface of Sartor Resartus. Question number 39. Dash is one of the phonetically distinct variants of a phoneme. Distinct variants of a phoneme को क्या बोलेंगे? Is it a phoneme itself, allophone, allomorph or morph? हाँ जी. Dash is one of the phonetically distinct variants of a phoneme. It is an allophone. अलग अलग variants, p और aspirated p. ठीक है, dark l, clear l. ठीक है, so these are the allophones of l and p. Question number 40. What will be the pronunciation of the past morpheme ed in the word blamed? ब्लेम्ड में ईडी जो है वो क्या बन जाएगा? ड, ट, इट या नन ऑफ दीज? व्हाट विल बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पास्ट मॉर्फीम ईडी इन द वर्ड ब्लेम्ड? इट विल बी ड. ठीक है, क्योंकि म जो है वॉइस्ड साउंड है, म जो है वॉइस्ड साउंड है. ठीक है, तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे? इट्स ब्लेम एंड ड. It's blamed.
All right. Question number 41. Which vowel will come in the word worst? Worst में कौन सा vowel आएगा? A, B, C or D? Which vowel will take place in the word worst? That will be the vowel. Yes. कौन सा वाउल आएगा? दिस वन, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जहां पे ई आर आ जाए, आई आर आ जाए, ओ आर आ जाए, यू आर आ जाए, ठीक है, वहां पे 3 डॉट्स आता है इन द मिडल, जब ये वर्ड के मिडल में आ जाए, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द वर्ड, जब ये वर्ड के मिडल में आ जाए ना तो 2 डॉट्स आता है. ऑल राइट. Question number 42. Which vowel will be there in the word this? इस वर्ड में कौन सा वाउल आएगा, या सिंपली अगर हम कहें इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? A, B और C. What will be the pronunciation of this word SPHERE? It will be sphere. स्फीयर बोलते हैं बच्चे, स्फीयर नहीं बोलते. इट विल बी लाइक दिस. इसको ऐसे ट्रांसक्राइब करेंगे, स्फीयर. राइट, इट विल बी स्फीयर. क्वेश्चन नंबर 43. विच कॉन्सोनेंट विल टेक प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड स्पेलिंग? ये अंडरलाइन मैंने किए हुए थे बट पता नहीं क्या हो गया, ठीक है. जो ये अंडरलाइंड स्पेलिंग है, यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट आएगा? थ, ड, ट या द? थ, ड, ट या द? फंस गए, कई लोग नहीं फंसे मेरे चाल में. इट्स क्लोथ. बच्चे जब ई आ जाता है तो इट विल बी क्लोथ. इट विल बी क्लोथ. द, जब ई नहीं आएगा इट विल बी क्लॉथ. इट विल बी क्लॉथ. सेम चीज होएगी बाथ में और बेद में. It will be same in bath and bathe, right? This will be bath and this will be bathe. समझ आ गई अब मेरी बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 44. पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप्स इन लिंग्विस्टिक्स आर. पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोथ या नन ऑफ दीज? Paradigmatic relationships are horizontal or vertical? They are vertical. They are vertical बच्चे. They are vertical. Yes. Paradigmatic होते हैं, जैसे हमने he को she से सब्स्टिट्यूट कर दिया, she को हमने they से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया आर से, आर को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वर से, ठीक है. ही इज गुड, शी इज ब्यूटिफुल, यहां पे हमने एडजेक्टिव को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है जी. फिर हमने दे वर प्लेइंग, राइट. तो जो सब्स्टिट्यूट वाले होते हैं, जो इस तरीके से होते हैं, एक सेंटेंस में जहां पे हमें पता है कि नाउन के बाद वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर एडजेक्टिव और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है. सिंटैग्मेटिक हो, पैराडिग्मेटिक, सिंटैग्मेटिक, ये दो होते हैं, सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक. सिंटैग्मेटिक होते हैं जैसे हम बोलो ही इज अ गुड बॉय, राइट. हमें अब पता है कि ही के बाद इज आएगा, इज के बाद ए आएगा, ए के बाद गुड आएगा और बॉय आएगा. अगर मैं ऐसे कर दूं बॉय इज ही अ गुड, इज इट मेकिंग एनी सेंस? इट्स टोटली रॉन्ग, राइट. तो ये हॉरिजॉन्टल है. नहीं नहीं जी नहीं, बोथ नहीं आएगा. दे आर नॉट बोथ, दे आर जस्ट पैराडिग्मेटिक, दे आर जस्ट वर्टिकल. बोथ कभी भी नहीं आता, बोथ कभी भी नहीं आता, ठीक है. ये वर्टिकल कब होंगे? जब मैं ही की जगह कर दूं शी की जगह कर दूं, इज की जगह कर दूं शी वॉज ए
प्रिटी गर्ल, सब्स्टिट्यूट कर दिया ना मैंने। पैराडिग्मेटिक जो है उनके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? पैराडिग्मेटिक आर वर्टिकल, राइट, vertical, and then they are also called substitutional, substitutional, right? चलिए, and the last question for today, dash is referred to as the element or raw material of language, form, competence, performance या substance। element और raw material of language किसको कहेंगे हम? element or raw material of language is, it is substance, very very correct, substance। So for tomorrow you will be preparing Charles Dickens, from this age you will be preparing Charles Dickens, Charlotte Bronte एंड एमिली ब्रॉन्टे, ठीक है, क्योंकि एमिली का तो सिर्फ एक अकेला वुदरिंग हाइट्स है, शार्लेट का भी अकेला जो है बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करना है आपने जेन आयर पे, ठीक है। तो ये बस 3 राइटर्स हैं जिसमें चार्ल्स डिकेंस जो है मेजर है, राइट, ऑल राइट। और कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं इनमें से किसी भी नंबर्स पे। बच्चे अगर ट्रांसक्रिप्शन सीखना चाहते हैं तो बायो डिक्शनरी, डेनियल जोन्स की डिक्शनरी खरीद लीजिए। जो भी वर्ड आपके मन में आता है उसको देखिए, ढूंढ के देखिए, डेनियल जोन्स की डिक्शनरी आती है, राइट, ट्रांसक्रिप्शन सीखने के लिए। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे, आई विल सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम, थैंक यू। हाँ जी बच्चे, आई हैव गॉट द लिटरेरी टर्म्स एंड वी विल डू देम, नैन्सी वी विल डू देम। Okay, thank you everyone.